Good morning, students. Let us start. The topic is same, Advanced ISO level, lesson 7. So, look at the next. Look at the last line we did in our previous lecture. That was, wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? I think he was a Jew, Mr. Jackson. So, now just look at these sentences. Now, here, Mr. Jackson, the prison officer, making fun of Einstein. क्योंकि उसको श्योरिटी है कि ये एग्जामिनेशन के लिए सिंसियर नहीं है. दैट इज व्हाई ही इज टॉन्टिंग हिम. यहाँ पे एक आयरोनिकल वैसे बोल रहा है कि he was highlighting this particular point कि आइंस्टाइन हमारा कैसा है. If we look at the previous sentence, that is Jackson nodded curtly and how's our little Einstein this morning. So this particular sentence is spoken by Mr. Jackson because he was sure that he never wanted to appear for examination. He never wanted to appear for examination sincerely. So that is why he was taunting here. Just look at it. यहाँ पे events भी कम नहीं था. How he was replying Mr. Jackson. Just look at. Wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? So highlighting that particular point that Mr. Jackson, Einstein mathematician नहीं था. I think he was a Jew, Mr. Jackson. He was again adding to the same. मुझे लगता है कि वो Jew था. Jew, I had already told you people that is a religion. And he was highlighting that particular point. तो यहाँ वो highlight करना चाह रहा है जैक्सन जो है जैक्सन को highlight करना चाह रहा है इवेंस कि ना तो मैं मैथमेटिशियन हूँ ना ही मेरा रिलीजन ज्यू है तो फिर मेरे को क्यों कर रहे हो आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आइंस्टाइन के साथ. So he was replying Mr. Jackson's sentence a very fine way because he was very clever. He knew what to do, how to do, when to do, and how to answer query, even complicated query. I think you are noting down the basic character traits of events in a very sincere way. तो यहाँ ऑलरेडी मैंने बेटे बताया था apostrophe e is highlighting he. तो ये ऑथर ने अपने आप को इजी बनाने के लिए बायोग्राफर ने अपने आप को इजी बनाने के लिए यानी इस टेक्स्ट को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है शॉर्टन फॉर्म यूज किया है बट नोट डाउन दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू जस्ट नो राइट टू यूज शॉर्टन फॉर्म एनीवेयर योर एग्जाम इन योर रजिस्टर तो मार्क्स कट जाएंगे. आई थिंक यू आर क्लियर. Now let us start. Ivan's face was unshaven, and he wore a filthy-looking red and white bobble hat upon his head. Give me a chance, Mr. Jackson. I was just going to shave when you burst in. Now just look at this paragraph. Now Ivan's face was unshaven. It highlights that face of Ivan was not shaven properly. यानी unshaven होता है जब beard बड़ी बड़ी आई होती है शेव नहीं किया होता. And he wore a filthy looking red and white bobble hat upon his head. तो उसने पहनी हुई थी बहुत घटिया सी filthy looking होता है dirty looking red and white bobble hat. रेड और व्हाइट कलर की बोबल हैट पहनी हुई थी upon his head. You are able to understand. तो बोबल हैट क्या होती है बेटे बोबल हैट होती है छोटे होते आपने भी पहनी होगी ऊपर से गोला सा बना होता है जैसे बच्चे पहनते हैं तो उसने बड़ी गंदी सी रेड और व्हाइट कलर की बोबल हैट जो थी पहन रखी थी इवेंट्स ने highlighting give me a chance Mr. Jackson I was just going to shave when you burst in. तो यहाँ थोड़ा सा हड़बड़ा गया इवेंट तो एकदम से बोला कि मिस्टर जैक्सन मुझे मौका दो चांस दो I was just going to share when you burst in. Burst in होता है entered.
to enter, to arrive. तो कहते हैं कि मैं बस शेव करने लगा ही था जब तुम एंटर कर गए, यानी कि जब तुम मेरे सेल में एंट्री कर लिया था, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट ही मस्ट शेव एट एनी कॉस्ट. तो wanted to highlight the point that he would be neat and clean at the time of examination. जब पेपर शुरू होगा वो नीट एंड क्लीन होगा, उस अनशेवन, यानी यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस कि पूरी तरह शेव करके he would be formal in outlook. He wanted to highlight, give me a chance here highlighted कि मुझे एक मौका दो, एक मौका दो, क्योंकि यहाँ हड़बड़ा गया, गंदा सा बना हुआ था वो, गंदी सी हैट पहन रखी थी, दाढ़ी जो थी उसकी बहुत बड़ी बड़ी थी. Automatically I think you are able to understand this particular paragraph in a very sincere. तो burst होता है to enter. So I think crystal clear, there is no doubt so far as this particular paragraph is concerned. Just look at page number 473, students, just look at. Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. Now just look at this. Which reminds me, यानी ये जो डायलॉग है जैक्सन का, इट इज इंटायरली कनेक्टेड टू द प्रीवियस डायलॉग ऑफ इवेंट्स. तो इससे मुझे याद आया, क्या याद आया, यू हैव टू लुक एट जैक्सन टर्न. जैक्सन थोड़ा सा मुड़ा, टर्न हिज आईज, उन्होंने अपनी आंखों को दूसरे डायरेक्शन में किया, यानी किस डायरेक्शन में किया, ऑन स्टीफेंस. Already you have studied that Jackson and Stephens both were there in Evans' cell in order to inquire the base. कि कहीं कोई नेगेटिविटी तो नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी तैयारी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि बैड पर्सन इज बेटर देन बैड नेम. इस बंदे पे यानी बदनामी हो चुकी थी, हिंदी में कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, तो ये बदनाम हो चुका था क्योंकि he had broken the jail thrice. तो इसलिए दो ऑफिसर्स जो थे गवर्नर ने भेजे थे कि चेक करके आओ कि क्या प्रॉपर वैसे तैयारी कर रहा है पेपर की, या आउटलुक अपनी अपग्रेड कर रहा है, कुछ ऐसा कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रच रहा जिससे कि एग्जामिनेशन फेलियर हो. I think you are crystal clear up to this particular point. There is no doubt in that. You are 100% sure. Next step is, you will have to look at the next step in a very sincere way. Make sure you take his razor out of the cell when he has finished scraping that ugly mug of his. Clear? Just look at the dialogue of Mr. Jackson. यानी कि वो ये वाला जो सेंटेंस आपको हाईलाइट कर रहा है, ये वर्ड्स हाईलाइट कर रहे हैं, जैक्सन टर्न्ड हिज आईज ऑन स्टीफेंस, यानी कि वो उसकी तरफ देखा, स्टीफेंस की तरफ, क्योंकि वो स्टीफेंस को इंस्ट्रक्ट कर रहा था. क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि यार ऐसा करियो, जैसे ही अपना ये शेव कर ले तो इसका रेजर जो था वो बाहर निकाल लेना, सेल के अंदर ना पड़ा रहे, बिकॉज ही वाज डेंजरस पर्सनैलिटी. किसी भी नेगेटिव चीज को नेगेटिव वे से यूज करना उसको अच्छे तरीके से आता था, इवन पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव वे से यूज करना आता था, बिकॉज ही वाज क्रिमिनल. तो यहाँ आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ हिज सेल when he is finished scraping. यहाँ पे जब शेव कर लेगा, that ugly mug वर्ड बेटे यहाँ पे it means face. आप यहाँ पे जो mug वर्ड है that is used to highlight face. You have to look at this particular word in a very sincere way. It is little bit tough. Note it down. You must note this particular word in a very sincere way. I think crystal clear, there is no doubt in that. तो कहते जब ये शेव कर लेगा अपने मुंह की अगली फेस, यानी कि घटिया फेस यूज किया गया है उसके लिए वर्ड ऑफिस, यानी जब अपना नेगेटिव टाइप का जो फेस है वो शेव कर लेगा तो इस जो रेजर है वो बाहर निकलवा लेना सेल से, यानी कि उसकी सेल में
वो जो रेजर था ना पढ़ा रहे, रेजर यू आर एबल टू लुक एट, क्योंकि इसलिए इंस्ट्रक्शन दे रहा कि कहीं कोई नेगेटिविटी क्रिएट ना कर दे। और सेकंड पॉइंट ये था कि पेपर उसी के सेल में उसका होना था, जो एग्जामिनेशन सेंटर था, जो एग्जामिनेशन वेन्यू था, उसका अपना ही सेल था। तो क्लियर, जैक्सन वांटेड टू गेट कंफर्मेशन फ्रॉम स्टीफेंस कि क्लियर हो गया आपको, जो मैंने तुझे इंस्ट्रक्शन दी है स्टीफन, क्लियर हो गया कि जैसे ही ये अपना शेव कर लेगा, ये रेजर जो है वो बाहर निकलवा लेना, वहां ना पड़ा रहे इसके साथ। आई थिंक यू आर क्लियर। वन ऑफ दीज डेज he will do us a favor and cut his bloody throat. Just look at the deep meaning of this particular sentence spoken by Jackson. यहाँ पे जैक्सन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन दिनों में, यानी उसकी नेगेटिविटी बता रहा है इवेंट्स की, he will do us all a favor and cut his bloody throat, कि इन दिनों में हो सकता है कि कोई ऐसी नेगेटिव हरकत कर दे, अपना ही गला काट ले। तो ऐसे नेगेटिव पर्सनालिटी का कहते हैं क्या भरोसा है, अगर रेजर हम वहां पड़ा रहने दें तो कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। इट कैन क्रिएट एनी एक्सट्रीम लेवल नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव जो है एक्टिविटी कर सकता है उस रेजर को मिसयूज करके। आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर। तो ये जो सेंटेंस है थोड़ा टफ है, इसको जरा ध्यान से बेटे समझ लीजिए कि यहाँ पे वो एक टॉन्ट कस रहा है, टॉन्ट मार रहा है जो जैक्सन है, स्टीफन को कह रहा है कि इन दिनों में ये ऐसा भी हो सकता है कि अपना ही गला काट ले रेजर से, यानी उसकी नेगेटिविटी को हाईलाइट कर रहा है। यानी यहाँ पे इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसके सेल में ना पड़ा रहे, नेगेटिव टाइप ऑफ पर्सनालिटी कुड डू एनीथिंग इन अ रॉन्ग ऑर्डर वेरी अर्ली, तो इसको चांस नहीं देना नेगेटिविटी करने का। तो यहाँ स्टीफन को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि स्टीफन जी जैसे ये अपना शेव कर ले तो ये रेजर ना सेल से बाहर निकाल ले। Just look at, I think you are crystal clear so far as this paragraph is concerned. Oh, next, for a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Just look at this particular sentence. Next paragraph. Already you are crystal clear about few, a few, the few, a few is some. तो कहते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए, यानी ये सेंटेंस हाईलाइट कर रहा है कि कुछ सेकेंड्स के लिए इवेंट्स जो था ध्यान से किसकी तरफ देखा उन्होंने, इवेंट्स ने, यानी जैक्सन की तरफ। तो स्टैंडिंग रैम रोड, just use the word ramrod. I think it's a very new word for you people. ramrod क्या होता है बेटे? ramrod होता है स्ट्रेट, यहाँ पे हाईलाइट किया गया जैसे पोल की तरह स्ट्रेट। वैसे अगर बेसिक मीनिंग देखा जाए रैमरोड का, ये होता है जो पुराने टाइप की राइफल्स होती थी ना बेटे, उसमें क्या जो उसका अपर पोर्शन होता था बिल्कुल सीधा होता था, उसको क्लीनलीनेस के लिए यूज किया जाता था। उसको जो आई थिंक इट वाज यूज्ड टू बी यूज्ड फॉर फिलिंग, जो गोली होती है उसको भी फिल करने के लिए, उसको डिफरेंट उसका जो पार्ट होता था बहुत लंबा सा स्ट्रेट सा पार्ट होता था, उसको यूज किया जाता था क्लीनलीनेस के लिए, और उसको बुलेट को उसमें फिट करने के लिए यूज किया जाता था। आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर। लेकिन रैमरोड का यहाँ पे बेटे मीनिंग क्या है, यू हैव टू लुक एट दिस। रैमरोड यहाँ था स्ट्रेट, वहां जैक्सन के लिए यूज किया गया था कि जैक्सन बिल्कुल सीधा खड़ा था इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी इवेंट्स के सामने। A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. So now just look at a string of Second World War medals. So you have to look at कि जो भी ये आर्मी पर्सनालिटीज होती हैं, जो ये मिलिट्री पर्सनालिटीज होती हैं, इनको जब भी ये जॉब करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, दे आर एबल टू गेट मेडल्स।
तो अगर कुछ अचीवमेंट होती है उनको मेडल मिलता है और वो उन मेडल्स की बड़े दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और वो हमेशा पहनते हैं जब कहीं पे भी वो जाते हैं, किसी भी फॉर्मल पार्टी में, किसी भी यानी फॉर्मल वे से जब भी वो बाहर निकलते हैं घर से, दे जस्ट हाईलाइट द सिंबल ऑफ प्राइड बाय लुकिंग एट ऑल द मेडल्स। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जितने भी मेडल्स थे सारे जैक्सन की लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट पे लगे हुए थे। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। प्रेडेड यू हैव टू लुक एट, यहाँ प्रेडेड का मतलब जो रियल सेंस में इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू लुक एट द थिंग्स कि वो सब लगे हुए थे, यानी हैंगिंग, यानी वो दे वर जस्ट हाई, डिस्प्लेड के लिए यूज किया गया है ये वर्ड। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। तो मिस्टर जैक्सन, was it you who took my nail scissors away? Evans had always worried about his hands. Now just look at this sentence. यहाँ पे इवेंस वॉज मेकिंग इंक्वायरी। तो क्या इंक्वायरी कर रहा है, वो जैक्सन से पूछ रहे हैं कि मिस्टर जैक्सन प्लीज टेल वन थिंग कि आपने मेरा नेल सीजर लिया, आप आपने यहाँ से निकाला है नेल सीजर। आई थिंक नेल सीजर्स यू आर एबल टू लुक एट, छोटी सी सीजर्स होती है जो कि नेल काटने के लिए यूज होती है, नेल कटर के लिए नहीं है बेटे। You might have seen small scissors. So the early times people used to trim their nails by using small type of nail scissors. I think crystal clear. तो कहते हैं कि आपने लिया है जो मेरी नेल सीजर्स है। Evans had always worried about his hands. Evans की एक हैबिट थी, क्या हैबिट थी? He used to worry about his hands. उसको बड़ी चिंता रहती थी कि हाथ उसके नीट एंड क्लीन दिखने चाहिए, तो इसलिए मेकिंग इंक्वायरी की जैक्सन जी आपने मेरा नेल सीजर लिया। नेल सीजर्स आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर की किसको कहते हैं, एंड योर नेल फाइल टू। Now just look at the reply of Mr. Jackson. The early stage of the chapter, I have told you that Jackson and Evans both were warm enemies. वार्म एनिमीज यही होता है, नोक झोंक चलती रहती है, एक की बात को दूसरा पसंद नहीं करता और दूसरे की बात को फर्स्ट, while cold war is there between two parties, two persons. तो यहाँ पे हमने अर्ली स्टेज में पढ़ा है कि दोनों एक दूसरे के वार्म एनिमीज थे। नाउ यू हैव टू लुक एट दिस पॉइंट। तो बड़े गुस्से से बोलता है कि हाँ हाँ मैंने आपकी नेल फाइल भी ली है, और नेल फाइल जो नेल्स को शेप देने के लिए यूज की जाती है, यू माइट हैव सीन। तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। जब जैक्सन मिस्टर जैक्सन से इवेंस पूछता है कि आपने मेरी नेल सीजर लिया है, तो गुस्से में जो जैक्सन है कहते हैं हाँ हाँ मैंने तेरा नेल फाइल भी लिया है। नेल फाइलर यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड। लुक, for a moment Evan's eyes smoldered dangerously, but Jackson was ready for him. तो लुक के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये बड़े वार्निंग दे रहा है, was just highlighting the point in very irritating way। जब ये टॉन्टिंग वे से बोल रहे हैं जैक्सन जी कि हाँ हाँ सीजर तो छोड़, मैंने तेरा नेल फाइल भी यहाँ से उठा लिया है, तो थोड़ा इरिटेशन में आ जाता है, तभी लुक के साथ एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। कहते देखिए मिस्टर जैक्सन जी, फॉर अ मोमेंट Evan's eyes smoldered dangerously। कुछ क्षण के लिए जो उसका आईज जो थी that were showing different type of I think language। कहते हैं ना eyes are the index of person's actions or reactions or character। तो उसकी आंखों की मूवमेंट किसी और तरीके की थी, क्योंकि वो इरिटेट हो चुका था सुन के इस बात का कि मेरे ये इरिटेशन में जो जैक्सन ने आंसर दिया था कि हाँ मैंने तेरा नेल फाइल भी ले लिया, फाइलर भी ले लिया, तो ऑटोमेटिकली क्लियर, आई थिंक देयर इज नो डाउट इन दैट। तो उसकी आउटलुक जो थी थोड़ी सी अलग हो गया सुन के, ही बिकेम इरिटेटेड, यानी इवेंस बिकेम इरिटेटेड, बट जैक्सन वाज रेडी फॉर हिम। जैक्सन तैयार था। अगर हम ऑफिसर हैं जेल के और क्रिमिनल या
जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो कुछ अपने एक्शन और रिएक्शन अच्छे तरीके से नहीं दिखा रहा, जो हमें हमारी ड्यूटी से अवे करते हैं, तो वी पोजेस राइट टू लुक एट द थिंग्स। तो प्रोफेशनल कहते ही उसको है। तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। या जैक्सन जो उसके नेगेटिव एक्शंस थे, जो उसकी आई जो लैंग्वेज थी आईज की इरिटेशन वाली इवेंट्स की, उसको सहने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको सक्सेसफुली अपना असाइनमेंट करना था मिस्टर जैक्सन को। नाउ जस्ट look at the things, I think crystal clear. Now look at the next. Orders of the governor Evans. He leaned forward and lead his voice dropping to a harsh, contemptuous whisper. You want to complain? Just look at this. So, if we look at this particular sentence, we are able to look at in a very fine order. तो यहाँ पे जैक्सन जी कह रहे हैं कि ये तो गवर्नर के ऑर्डर हैं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे जो ऑफिसर हैं, जो गवर्नर जी हैं, उनका ऑर्डर है कि इसके सेल में कुछ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि ना ही तो नेल फाइलर हो, ना ही नेल सीजर हो, तो ना रेजर हो। तो कहते हैं तो गवर्नर के ऑर्डर है इवेंट्स, तो इरिटेशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। He leaned forward and lead was just making actions and reactions in a very different way so far as things are concerned. तो यहाँ पे जो हम एक्शंस और रिएक्शंस इन सेंटेंसेस से, इस डायलॉग से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेरी डिफरेंट। तो कहते हैं कि ये तो गवर्नर का ऑर्डर है। थोड़ा से आगे की तरफ हुए मिस्टर जैक्सन जी एंड लीड हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू हार्श। तो वो थोड़ी हार्श लैंग्वेज में उन्होंने बोला, थोड़ी हेट्रेड थी जो उन्होंने बोला उसमें। यू वांट टू कंप्लेन, यहाँ वो इवेंट्स को कह रहे हैं कि तू क्या कंप्लेंट करना चाहता है, कर दे जाके जा, लेकिन जो हमारी ड्यूटी है हम करेंगे ही करेंगे। यहाँ जैक्सन हाईलाइट करना चाहता है जहाँ कि हमें जो ऑर्डर दिए हैं गवर्नर ने, वी विल डू फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। अगर तुझे इरिटेशन होनी है तो इरिटेट होता रहे। I think crystal clear up to this particular point. There is no doubt in that. Now just look at the next. Evans shrugged his shoulders lightly. The crisis was over. तो ये आपस में वाद विवाद इनका हुआ था ना, थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज या इरिटेशन आया था। इवेंस भी इरिटेट हुआ था और जैक्सन भी। तो इसमें क्या हुआ, नाउ लुक एट द नेक्स्ट की, इस जो नेगेटिविटी थी, जो एक्शंस और रिएक्शंस थे नेगेटिव वाले, वो कैसे खत्म हुए, ये सेंटेंस हाईलाइट करता है। इवेंस श्रग्ड हिज शोल्डर्स। इवेंस ने अपने कंधे हिलाए। श्रग होता है जस्ट मूवमेंट जिसको बोला जाता है। लाइटली, बड़े लाइट वे से उसने अपने शोल्डर्स को हिलाया। द क्राइसिस वाज ओवर। क्राइसिस मतलब जो उनका नेगेटिविटी चल रहा था डिस्कशन में, दैट वाज ओवर। यानी दैट पर्टिकुलर क्राइसिस ऑफ जस्ट आंसरिंग द क्वेरी ऑफ इवेंट्स। यानी क्वेरी क्या थी इवेंट्स की यहाँ पे, कि मेरा मेरे नेल्स सीजर्स और आपने उठाए, तो इरिटेशन में आंसर दिया था जैक्सन ने। तो आई थिंक दैट पर्टिकुलर negative or whatever, I think arrogant attitude of both was consoled over here. तो यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। क्राइसिस का मतलब यही, जो आपस में इनकी थोड़ी सी बहस चल रही थी, वो खत्म हो गया। You got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. Now next you are able to look at the instruction given by जैक्सन टू इवेंस। क्या इंस्ट्रक्शन दिया इवेंस को जैक्सन ने? उन्होंने कहा कि ऐसा है इवेंस जी, लिसन दिस पर्टिकुलर पॉइंट केयरफुली, जरा ध्यान से सुनो। तो आपके पास आधा घंटा है, 30 मिनट्स है, टू स्मार्टन योरसेल्फ अप। रेडी हो जाओ, स्मार्टन योरसेल्फ अप होता है कि तैयार हो जाओ। फॉर्मल वे से पेपर देना तो फॉर्मल आउटलुक अपनी बना ले,
अपनी जो फिजिकल आउटलुक है उसको सुधार ले। देखिए ड्रेस कोड हो गया, इसमें आ जाता है शेव करना हो, अनशेव्ड फेस नहीं होना चाहिए और ड्रेस कोड सही होना चाहिए। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, स्मार्टन योरसेल्फ अप। यहाँ पे मिस्टर जैक्सन ने इंस्ट्रक्शन दी, मिस्टर जैक्सन गिवन इंस्ट्रक्शन टू इवेंस टू गेट रेडी फॉर एग्जामिनेशन। तो गेट रेडी में क्या क्या पॉइंट आए हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, कहते ये जो घटिया सी तूने हैट पहन रखी है ना, इसको उतार दे। I think you are able to understand this particular point. Early in the chapter, you have studied about the bobble hat, red and white. Bobble hat of Evans. तो वो बड़ी अजीब सी हैट उसने जो पहन रखी थी, जैक्सन ने ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन दी कि उतार इसको। यहाँ पे भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। जैसे उन्होंने कहा था कि जो हैट है उसको उतार दे और तैयार हो जा पेपर के लिए, यानी आउटलुक अपनी सुधार ले, क्योंकि उस टाइम पे उसकी आउटलुक बड़ी वर्स्ट टाइप की थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एग्जाम में अपीयर करने जा रहा है या ही वाज गोइंग टू अपीयर फॉर एग्जाम, नेवर सीन। ये आउटलुक बहुत नेगेटिव थी, अनशेवन फेस था, थिंग्स वर वेरी नेगेटिव। जस्ट लुक एट द नेक्स्ट। मी एट Evans put his right hand lovingly on the top of the filthy woolen and smiled sadly. Do you know, Mr. Jackson, it is the only thing that's ever brought me any sort of luck in life. Kind of lucky charm. If you know what I mean. And today I thought, well, with me exam and all that dash 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 and inverted commas and close. Try to understand the words of Evans here. कहते मैं, ये वर्ड जो बेटे अपोस्ट्रोफी और 88 इज यूज फॉर हैट, तो कहते मैं और हैट उतार नहीं उतारता, ये नहीं मैं उतार सकता। यहाँ पे वो मना कर रहा है कि मैं हैट नहीं उतारूंगा, पेपर के वक्त भी मैं हैट पहनूंगा। तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर अप टू दिस पॉइंट। तो उसने इवेंस had put his right hand lovingly on the top of his filthy woolen, तो उसने जो गंदी सी वूलन रेड और व्हाइट कलर की बोबल हैट पहनी थी उसके ऊपर उसने हाथ रख लिया और स्माइलिंग सैडली, बड़ी उदासी से स्माइल कर रहा था वहां पे। और अब बता रहा है, कुछ कुछ बताने जा रहा है वो जैक्सन को। कहते सर आपको पता है, डू यू नो, यहाँ पे डी का मतलब बेटे डू है। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इस चैप्टर में जो बायोग्राफर है उसने जगह जगह शॉर्टन फॉर्म यूज किया बिकॉज इट्स वेरी लेंथी चैप्टर, दैट इज व्हाई ही चूज्ड। और आपको नहीं यूज करना कहीं पे भी, नो। डू यू नो मिस्टर जैक्सन, कहते जैक्सन, मिस्टर जैक्सन आपको पता है, इट्स द ओनली थिंग दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ। कहते यही चीज है जो जिसने, now just listen the things in a very fine way। तो यहाँ पे you will have to look at this particular, do you know मिस्टर जैक्सन, यहाँ पे इवेंस मिस्टर जैक्सन को कुछ बताने जा रहा है। वो क्या कह रहा है कि ये जो हैट है ना मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आई है, गुड लक आया तो इसी हैट के कारण आया। कई बार हम लोग भी इन चीजों को, सुपरस्टिशंस को मानने लग जाते हैं ना कि ये ड्रेस पहन लें या ये कलर पहन लें देन वी विल बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे वो इसी बात को हाईलाइट कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो उस हैट को जो है इसलिए पहनना चाह रहा है क्योंकि वो उसको कुछ चालाकी खेलनी है। उसमें आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे कि हैट को कैसे मिसयूज करेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो वो कहते हैं कि जब भी मेरी कुछ तकदीर में पॉजिटिव हुआ इस हैट के कारण ही हुआ, नहीं मैं उतारता। काइंड ऑफ लकी चार्म। देखिए ये तो मेरे लिए एक बहुत लकी चार्म है। लकी चार्म होता है द थिंग व्हिच ब्रिंग्स गुड लक फॉर अस। इफ यू नो व्हाट आई मीन, अगर आप इस चीज को समझते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो समझ चुके होंगे मिस्टर जैक्सन जी कि ये नहीं मैं उतारता, ये मेरे लिए बहुत गुड लक लेके आती है हैट, ये नहीं मैं उतारने वाला, नेवर।
And today I thought, well, सोचा कि ये पेपर में भी मेरे साथ ही रहेगी and all that dash dash dash. यानी कि मैं ये नहीं उतारूंगा क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्शन मिस्टर जैक्सन ने दी थी कि अपनी हैट उतार ले, he was just answering that. He was highlighting that particular point that he could never ever be able to take off his hat. Reason behind that, he wanted to make a lame excuse that hat is very lucky for him. ये कभी भी कहते कि तकदीर में जब पॉजिटिविटी हुई है, जब मुझे मेरे साथ कुछ पॉजिटिव हुआ है, उस हैट के कारण ही हुआ। लकी चार्म वो होता है जो जिस चीज से हमें गुड लक मिलता है, यानी जिससे कि हमारी, हम कहते हैं ना कि किस्मत में 4 चांद लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। पर ये कोई रियलिटी में नहीं कह रहा कि उसको मिसयूज करेगा, वो आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में। So now just look at the next. Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion, and Evans knew it. जो जैक्सन थे, मिस्टर जैक्सन, चाहे वो कितने टैलेंटेड प्रिजन ऑफिसर थे, पर उनमें थोड़ा सा जो उनका इमोशंस थी, फुल ऑफ सिंपैथी। कंपैशन क्या होता है? यू हैव टू लुक एट द थिंग, द पर्सन इज एबल टू हाईलाइट काइंड फीलिंग्स। इसमें काइंड इमोशंस होती हैं, जो सिंपैथी होती है, जो किसी के साथ यानी कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में काइंड एटीट्यूड दिखाने के लिए रेडी रहता है। तो आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज कंपैशन। टाइनी कोर ऑफ का मतलब थोड़ा सा, यानी उनकी पोस्ट ऐसी थी कि ज्यादा कंपैशनेट हो जाते या ज्यादा फीलिंग इमोशनल हो जाते काइंडनेस के लिए, तो अपनी ड्यूटी ही ना कर पाते। क्योंकि हर प्रोफेशन अलग तरीके के लेवल ऑफ जो कंपैशन है हर तरीके का चाहिए। किसी प्रोफेशन के लिए कितनी परसेंटाइल चाहिए होती है, किसी में कितनी। तो अगर वो ज्यादा ये फीलिंग दिखाता सिंपैथी की और काइंडनेस की, कुड बी जीरो इन हिज प्रोफेशन। तो यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहा है कि ये पॉइंट, ये सेंटेंस हाईलाइट कर रहा है कि टाइनी और मतलब थोड़ा सा, थोड़ी सी जो उनकी फीलिंग्स थी काइंड थी, यानी एंड इवांस न्यू इट। इवांस काफी देर से उसी जेल में था, तो पहचान चुका था कि ये इमोशनल भी है। तो he was able to recognize the habit of Mr. Jackson, was able to understand that particular point that he was kind of. So I think crystal clear up to this particular point, there's no doubt. So this is all for today. So you will have to design at least 20 questions, and you will have to write today's lecture in your fair register. So any doubt, any query, you just write to make your queries. This is your time.